हो गया ठीक. Hello friend, welcome to all of you. I am Vishal sir and I am here to help you learn the class 12th IP subject in a simple and easy way. Whether you are going for preparing the board examination or you are just starting, you are at a right place. Now, as you know that before starting the any subject, first of all we have to discuss about the syllabus. So today I am going to discuss you class 12th IP subject. My first video lecture is on IP subject syllabus. In this syllabus I will discuss you कि our subject is divided in how many part and how many units are there, then after that and whatever. So without wasting the time, let us take quick look of IP subject syllabus. Look here. Our syllabus is 25 and 26. First of all, I inform you our this subject is a 100 marks and this 100 mark is divided into the two part. First one is practical and second one is theory. Practical marks is 30 and theory marks is 70 marks. So here your theory part is divided into the 4 unit. First unit is data handling using the pandas and data visualization. Second unit, database query using SQL. Introduction to computer network and societal impact. So from first unit you can score 25 marks. From second unit, that is 25 marks. Introduction to computer network, that is 10 marks, and societal impact 10 marks. In this way you will get in your theory subject or in your theory portion 70 marks. This is 70 marks theory portion. Then after that practical, to practical conduct the 30 marks and you will get 70 plus 30, total 100. Now unit number first in a theory portion, data handling using the pandas 1. In this unit we will discuss introduction to Python library. In a class 12th we have used the two library. First one is matplotlib and second one is pandas. Then after that we will study the data structures in a pandas. There are two types of data structure. First one is one dimension and second one is two dimension. In a one dimension we will study about series. This is a one dimension data frame and data frame, this is a two dimension data frame. Now in a series, first of all we will discuss about in a series कि how we can create a series. To create, तो here we will discuss about कि create हम लोग कैसे करेंगे with the help of NDRA or with the help of dictionary. Then scalar value and mathematical function we will discuss. तो mathematical function, then after that head and tail series के बारे में, then functions के बारे में discuss करेंगे जो tail function है, selections के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन फाइनली इंडेक्स एंड स्लाइसिंग ऑफ द सीरीज. ये आपका वन डायमेंशन में पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा सीरीज के बारे में. देन वी विल डिस्कस अबाउट द टू डायमेंशन डेटा फ्रेम एंड इन अ टू डायमेंशन डेटा फ्रेम वी विल स्टडी व्हाट इज डेटा फ्रेम. इन अ टू डायमेंशन डेटा फ्रेम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट. हियर वी हैव अ 2 or 3 मेथड. First, from dictionary of series, this is the method number first to create a data frame. Second one is list of dictionary. This is second method to create a data frame. Now this is a not method, actually this is a text CSV file कि how we can import and export to data frame and then after that iteration हम लोग पढ़ने वाले. Then operation on the row and column. As you know, data frame, two dimension data frame is made of the row and column. In this table, this is a two dimension data frame. Data is stored in the row and column. In this table, how we can work with row and column, how to add the new row, how to add the new column, how to delete, how to rename. We will discuss about all these things, all the operation related to data frame in this unit. Here add a select, suppose that if you want to retrieve any column from this data frame, so with the help of selection operation we can retrieve it.
देन आफ्टर दैट रीनेम, सपोज दैट आपको कोई भी कॉलम या कोई भी रो रीनेम करना है. देन आफ्टर हेड एंड 12 फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडेक्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, देन बूलियन इंडेक्सिंग, एंड फाइनली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा बिटवीन द CSV फाइल एंड डेटा फ्रेम. हमारे पास CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू टाइप का कोई एक फाइल है, तो उस फाइल को हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे, डेटा फ्रेम में कैसे इंसर्ट करना है या फिर डेटा फ्रेम से कैसे उसको रिट्राइव कराना है, ये चीज़ हम लोग इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट वन, डेटा विजुअलाइजेशन. तो इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस द 3 टाइप ऑफ ग्राफ बेसिकली. तो विजुअलाइजेशन मीन्स कि हाउ वी वट एवर डेटा वी हैव, हाउ वी कैन शो दैट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और इन द फॉर्म ऑफ चार्ट. हियर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम. इसको ड्रॉ कैसे करना, देन आफ्टर दैट जो भी आपका ग्राफ बना हुआ है उसके साथ कुछ ना कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं, लाइक दैट उसमें कोई ना कोई लेबल होगा, तो हाउ वी कैन ऐड द लेबल. उसका टाइटल होगा, हाउ वी कैन वर्क विथ टाइटल. उसका कुछ ना कुछ लीजेंड्स होगा इन प्लॉट्स में, तो हम लोग उसको लीजेंड कैसे ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन में चेक करेंगे. इन दिस वे आप यूनिट नंबर 1 इज ओवर एंड यू विल from this unit you can score the 25 marks. Unit number 2, database using database query using the SQL. तो SQL पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा. देन आफ्टर दैट रिवीजन वी विल डिस्कस द कमांड्स जो भी मेरे पास है. हियर वी विल डिस्कस अबाउट द मैथ फंक्शंस. इन अ मैथ फंक्शन बेसिकली वी विल डिस्कस 3 टाइप ऑफ कमांड. फर्स्ट वन इज पावर फंक्शन, सेकंड वन इज राउंड एंड थर्ड वन इज मॉड फंक्शन. आखिर इसका हम लोग का क्या यूज है. देन टेक्स्ट फंक्शन. इन अ टेक्स्ट फंक्शन वी हैव स्टडी द यू केस और अपर केस. कि सपोज दैट अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन टेबल के फॉर्म में स्टोर है, तो हम लोग उस डेटा फ्रेम में सॉरी हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है डेटाबेस है, उस डेटाबेस में से हम लोग कैसे कोई भी कॉलम है तो कॉलम को कैपिटल लेटर में अगर हमको लिखना है जो उसमें डेटा रखा हुआ है, या फिर जो भी उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको स्मॉल लेटर में लिखना है, अपर केस और लोअर केस. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन वी कैन कन्वर्ट इट एल केस और लोअर केस इन ए स्मॉल लेटर. मिड फंक्शन का यूज करेंगे या फिर सब स्ट्रिंग का यूज करेंगे. दैट देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द लेंथ, हाउ वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, इन स्ट्रिंग, लेफ्ट ट्रिम. अगर आपके पास कोई भी डेटा है तो हम लोग को लेफ्ट साइड से वैल्यू कोई भी रिट्राइव करानी है या फिर राइट साइड की कोई वैल्यू रिट्राइव करानी, देन हाउ वी कैन रिट्राइव इट. एंड देन आफ्टर दैट ट्रिम. द ट्रिम फंक्शन इज यूज फॉर टू रिमूव द स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ. देन थर्ड फंक्शन इज हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा फ्रेम के बारे में, डेट फंक्शन के बारे में. नाउ डेट फंक्शन हम लोग यूज करेंगे. डेट फंक्शन के बारे में जानेंगे, मंथ्स फंक्शन के बारे में, मंथ नेम के बारे में, ईयर, डे एंड डे नेम. नेक्स्ट वी विल डिस्कस एग्रीगेट फंक्शंस. एग्रीगेट फंक्शंस में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम, काउंट यूजिंग द काउंट स्टार. एक्चुअली इन MySQL functions are categorized in 2 parts. First one is single row function and second one is मल्टीपल रो फंक्शन. तो सिंगल रो फंक्शन ऐसा होता है जो सिंगल डेटा के लिए काम करेगा, एंड मल्टीपल रो फंक्शन इज अप्लाई ऑन द मोर देन वन रो और मोर देन वन रो. तो ये आपका जो फर्स्ट 3 है, मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, दीज आर सिंगल रो फंक्शन एंड दिस इज मल्टीपल रो फंक्शन. और लास्ट में लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग विद द 2 टेबल. हम लोग 2 टेबल अगर मेरे पास है तो इक्विजाइन के बारे में डिस्कस करना. नेक्स्ट चैप्टर आपका यूनिट नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क. इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क. विच टाइप ऑफ नेटवर्क? फर्स्ट वन इज पैन, पर्सनल एरिया, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन, wide area network. Then we will discuss the network device. In a network device we will discuss which type of device: modem, hub, switch, repeater,
राउटर, गेटवे। आखिर इनका नेटवर्क में क्या यूज है? हाउ द डेटा इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, how the two different networks are attached to each other. So these devices are work in between them to connect the two different types of network, to share the or transmit the information from one network to another network. Then we will discuss the network topology. Topology means कि what is the physical structures of the system in a network. Here we will discuss star topology, bus topology, tree topology and mesh. And introduction to network. In an introduction to network we will discuss URL, www and its application. Application है क्या? Web, email, chat, VoIP. Then in the same chapter we will discuss the website. Websites का यूज क्या है उसके इंट्रोडक्शन देखेंगे. Then the difference between the website and web page, कि वेबसाइट एंड वेब पेज में डिफरेंस क्या. स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेब पेज. वेब सर्वर होस्टिंग ऑफ द वेबसाइट्स. हम लोग वेब सर्वर, देन आफ्टर दैट हम लोग किसी भी वेबसाइट्स को उसको हम लोग होस्ट कैसे करना है. देन वेब ब्राउजर. इन अ वेब ब्राउजर वी विल स्टडी व्हाट इज इंट्रोडक्शन, कॉमनली यूज ऑफ ब्राउजर, ब्राउजर सेटिंग कि उसमें किस टाइप का सेटिंग्स वगैरह दिया हुआ, एडवांस प्लग इन कुकीज. देन सोसाइटल इम्पैक्ट. इसमें लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे सोसाइटी पे आईटी का क्या इम्पैक्ट है. व्हाट इज द रोल ऑफ आईटी, व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीटी इन द सोसाइटी. तो हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे कि डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में. फुटप्रिंट तो सुना होगा, बट व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट, एनीवन हैव आइडिया? तो हम लोग इसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या है. देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेट एंड कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स. इफ यू आर यूजिंग द एनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एप्लीकेशन टू ट्रांसमिट द मैसेज, तो हम लोग को कैसे या फिर कैसा प्रोटोकॉल्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग दिस टाइप ऑफ एटिक्वेट्स हम लोग इसमें देखेंगे. कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ हमको फॉलो करना है, व्हाट इज द प्रोटोकॉल, व्हाट इज द रूल्स एंड रेगुलेशन टू ट्रांसमिट द मैसेज और वॉट एवर. डेटा प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. आईपीआर के बारे में डिस्कस करेंगे. प्लेगरिज्म, लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. कोई भी मेरे पास अगर सॉफ्टवेयर है तो उसका लाइसेंस क्या है, कॉपीराइट्स क्या है. फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस होने वाला है, F4SS शॉर्ट में. साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर दैट हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, ओवरव्यू ऑफ इंडियन आईटी एक्ट, ई वेस्ट, हैजर्ड एंड मैनेजमेंट. सपोज दैट अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अब वो खराब हो गया या फिर हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ किए हैं, तो उसको हम लोग को मैनेज, उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे. बिकॉज द डिवाइसेज आर बेसिकली मेड फ्रॉम द आयरन, बेरियम, तो दैट आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर नेचर. तो हाउ वी कैन मैनेज इट, हाउ वी कैन रिस्टोर, या क्या रिस्टोर हो सकता है कि नहीं, और वॉट एवर. अवेयरनेस एंड हेल्थ कॉर्नर रिलेटेड टू द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी. फिर हम लोग लास्ट में फाइनली ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं. तो नाउ योर सिलेबस हैज़ बीन कंप्लीटेड that we have discussed here. One time again. अभी आपको एक चीज का आइडिया लग गया होगा कि जो आपका आईपी सब्जेक्ट है ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है. 100 मार्क्स का पेपर है आपका. 70 मार्क्स का आपका थ्योरी होने वाला एंड 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है. दिस 70 मार्क्स थ्योरी इज डिवाइड इनटू द 4 यूनिट. डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, सेकेंड आपका है MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. दिस इज 25 मार्क्स.
this is 25 marks. Computer network 10 marks, and societal impact, this is 10 marks. In this way this theory portion is 70, and in the 30 marks प्रैक्टिकल के लिए आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, ठीक है। तो ये भी 4 पार्ट में कैटेगराइज है। आपका 15 मार्क्स का एक टेस्ट पेपर होता है। इन दिस 50 मार्क्स टेस्ट पेपर 7 मार्क्स आपका पांडास से है, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका एसक्यूएल से रहेगा। ये एक्सटर्नल एग्जामिनर ऑलरेडी लेकर के आएगा, जो आप लोग को सॉल्व करवाएगा एग्जामिनेशन में। देन आफ्टर दैट 5 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। फाइव मार्क्स आपका थ्योरी है, प्रैक्टिकल फाइल है, थ्योरी नहीं। तो 50 + 5 20 + 5 25, एंड रिमेनिंग 5 मार्क्स ये आपका वाइवा होगा। I think you clearly know that कि what is our syllabus and how we have to prepare for this syllabus for our board exam. Okay, so suppose that if you have any kinds of doubt related to this syllabus, then you can comment on the comment box. Thank you to all of you, and now wait for the next video lecture.